لیل مکھی احاطہ عرض پر وہ نسل انسانی کی تاریخ کا آخری غروب آفتاب تھا۔ وہ حالہ درخشاں آج شام سمندر کنارے آخری سانس لینے والا تھا۔ اس کے بعد کیا ہونے والا تھا کسے معلوم؟ تمام نسل انسانی ساحل کنارے نارنجی کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں سورج مکھی کے پھول لیے مایوس کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں سورج کی آخری کرنوں کی تاپ سے دمک رہی تھی۔ ساحل کا پانی جیسے کہ پستی بھول کر سورج کی کرنوں کا آخری بوسہ لینے کی کوشش میں تھا، جیسے انہیں اپنے اندر ہمیشہ کے لیے جذب کرنے کو بےتاب بار بار ساحل پر سر پٹکتے اپنا عشق سچا کر رہا ہو۔ یہ وہ آفتاب تھا جو دیوتا تھا، یہ وہ آفتاب تھا جو زندگی کی علامت تھا، وہی آفتاب جو سیاہ رات کی آغوش میں چھپا جنوں تھا، امید تھا، اور نوع انسانی کے دل میں چھپا آخری راز۔ زرتشت کے مقتدی ماتم کناں زمین پر ان کے خدا کی واحد نشانی معدوم ہونے والی تھی۔ کسانوں نے اناج کی سنہری بالیوں کو سونے کی بنی صندوقچوں میں چھپا دیا، اور سونار سونا پیتل کے بھاؤ بیچ کر چاندی سے تجوریاں بھرنے لگے۔ سب جان چکے تھے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو سورج کی یاد دلائے گی بھلا دی جائے گی۔ اب سب استعارے سیاہ رات سے جڑنے والے تھے۔ کچھ بشر ایسا یاد مٹانے اور دکھ بھلانے کو کریں گے، کچھ اس لیے کہ وہ صاحب حاضر ہیں، اور سورج قصہ پاری۔ ساحل پر کھڑے کچھ انسان ابھی بھی مصر تھے کہ یہ محض افواہ ہے، سورج کل بھی ہوگا اور اس کا زمانہ ابد تک کا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی سورج مکھی سب سے پہلے مرجھائے، پھر ہاتھوں میں قید لا تعداد ننھے سورج اپنے آپ ہی میں لپٹ کر غم چھپانے لگے، جیسے انہوں نے ڈوبتے سورج کی آخری جھلک نہ دیکھنے کی قسم کھا لی۔ جیسے جیسے سورج مکھی کے پھول مرجھاتے گئے، سینکڑوں ننھے جگنوں نے لوگوں کی دمکتی آنکھوں کو چھوڑا اور نکل کر ساحل سمندر پر کھڑے انسانوں کے سروں پر منڈلانا شروع کر دیا، جیسے اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ نسل انسانی نے ہاتھ کے مرجھائے پھول سورج کی قبر پر بچھائے اور جگنوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گھروں تک کا راستہ طے کیا۔ چراغ قدیم کے جاتے ہی سینکڑوں ننھے چراغ جل اٹھے۔ اب ہر گھر کا اپنا چراغ تھا، جو روشنی دینے کی بجائے محض اندھیرے کی موجودگی کا احساس بڑھا رہا تھا۔ ان چراغوں کی روشنی میں بننے والے سائے زیادہ لمبے، تاریک اور مسخ شدہ۔ سب لوگ اپنے سایوں کو دیکھ دیکھ حیران ہوئے۔ کچھ نے آنکھیں موند لی، کچھ نے چراغ بجھا دیے، مگر خودرو چراغ جانتے تھے کہ جب تک اندھیرے کا خوف ان کا خریدار ہے، کوئی ان کو روشنی کی ہتک کا تانا نہیں دے گا۔ جہاں ان چراغوں نے زمین پر پھیلے پیچھا کرتے سیاہ اجسام کی حیت تبدیل کی، وہی انسانی وجود پر پڑتی روشنی کو بھی باغی کر دیا۔ جہاں جہاں اس روشنی نے شرارت کی، انسانی چہرے کے نقوش، ہاتھ پاؤں کی صاف جسامت سب بدلنے لگے۔ جو اجسام اور اجزاء زری آفتاب کی فرما بردار کرنوں کے زمانے میں ثبات کا نشان، تسلی کا باعث تھے، وہ ننھے منھے چراغوں کی روشنی میں منتشر حال ہوئے۔ اس بدصورتی سے گھبرا کر سب نے اپنے اپنے گھروں کی دیواروں پر لٹکے آئینے توڑ دیے۔ وہ رات ماتم کی رات تھی۔ شب دراز کی تاریکی سے سہمے انسانوں نے خود پر سیاہ چادریں اوڑھ لی۔ اس رات دیر تک نسل انسانی اپنے چراغوں کو دیکھتے ہوئے نوحہ کنا رہی۔ نوح آدم نے اتنے آنسو بہائے کہ اس کی آنکھوں میں سجا قلم کی سیاہی کا عظیم نشان دھل کر دودھیا ہونے لگا۔ یہ جدائی کے غم کی تھکاوٹ تھی یا نئی زندگی کی شروعات کا اضطراب؟ دھیرے دھیرے ان کے جسموں پر خمار اور ذہنوں پر نیند طاری ہونے لگی۔ چراغ جلتے رہے اور انسان سو گئے۔ اگلے روز کی صبح رات کی جیسی سیاہ تھی۔ آفتاب کی حدت اور روشنی کے بغیر دن شروع کرنا مشکل تھا۔
जैसे तैसे लोग अपने चराग लेकर घरों के बरामदों तक आए। कुछ अभी तक यही सोच रहे थे कि फराग का वाकया महज एक डरावना ख्वाब और परेशान जहन का वाहिमा था, मगर जब इनकी आंखें उस आतिशी हाले को तलाशते थक गईं तो उन्होंने भी हार मान ली। कुछ लोग जिन्हें सुबह खेजी से चिढ़ थी, खुशी खुशी आसमान की जानिब तकते हुए तारे गिनने लगे। तसल्ली थी कि अब ये मंजर मुस्तकिल है, उनकी खौफ का खात्मा हुआ था। उस रोज किसानों ने गंदम की फसल की बाकियात अच्छी तरह साफ करते हुए नए बीज बोए। अब उनके जिस्म गंदम और अनाज खाने के काबिल नहीं रहे थे। ये बात एक सहरा नशीन राहिब ने समझाई थी। उसका कहना था कि जब साख्त ही बदलने वाली है तो वसाइल क्यों कर पुराने रहेंगे। नए इंसान को नई खुराक, नया लिबास और नई जुबान दरकार है। अब वो शम्से जरी के कर्जदार नहीं होंगे, अब उनके तौर आजादाना होंगे। सबने उसकी बात सुनी और दिल में बिठा ली। सब जानते थे कि बात ना मानने वालों के नसीब में सूरजमुखी का सा मातम लिखा है। वहां सूरजमुखी के फूलों की फसल जैसे कुर्बान गाह का मंजर पेश कर रही थी। हजारों सूरजमुखी जमीन बोस खुदा से जिंदा उठाए जाने की दुआ में मशगूल थे। कुछ अपनी ही डाल पर बेजान झुके इंतजार की सूरत बने थे। कुछ ने खुद को आफताब की एक झलक पाने की शौक में ही जला लिया था। उनकी मुर्दा लाशें यूं थी जैसे किसी मजलूम की अधूरी वसीयत, महज बेबसी और उदासी का इस्तारा। एक संग दिल आंधी आई और सब लाशें फिजा में बिखर गई, जैसे कोई भूली बसरी याद जहन के किसी अनजान गोशे में खुदकुशी कर ले और किसी को खबर तक न हो। अब जमीन अपना उजाड़ रहना वजूद छुपाने की खातिर बरगजीदा दरख्तों और मुकद्दस पेड़ों की जानिब मतवज्जे हुई। सूरजमुखियों की सरेआम कत्लेआम पर सभी मगमूम थे। बूढ़े दरख्त ने किसी नए अलामती पौधे की आबियारी का खुलासा कहा। जमीन की गोद आंसुओं से भर आई। सदियों से सूरजमुखी को पालने पोसने वाली धरती आज किसी अनजान बीज को पालने पर मजबूर थी। क्यों ना होती? पालना उसकी मजबूरी थी, पालना उसकी फितरत। उससे किनारा कर लेती तो फना हो जाती, मिट जाती। अभी सब एक दूसरे की नई सूरत से वाकिफ होने की कोशिश में ही थे कि चांद ने अपना आप आश्कार किया। वाय हसरत की इसमें रोशनी और तसल्ली तो थी, मगर जिंदगी की हरारत और तख्लीक का जौहर नहीं। लोगों ने उसी को सूरज का नेमुल बदल समझा और उसकी ठंडी रोशनी को खुदा मानते हुए अपना वजूद हर तरह की हिद्दत से खाली कर लिया। अब वो महताबे रोशन जिसे सूरज की तपिश और जलाल में लोग महज चिराग का सा दर्जा देते थे, खुदाए मुस्तर बन बैठे। अब उसी की रोशनी में फैसला होना था, इंसान का, जिंदगी का, एहतिताम का। धीरे धीरे सब इंसानों ने नए खुदा की तर्ज पर नीली रोशनी में जौहरे जिंदगी तलाश करना शुरू कर दिया। वो नीली रोशनी जो सर्द थी, लाताल्लुक थी, महरूम थी, अब हरारत की जगह खून की मोतबत है। उसका नीला सकूत जिस वजूद में उतरा उसके नकूश को नीलगूं करता गया। अगले रोज तक सब कुछ बदल चुका था। जहां आदमी नौ अपनी तश्कील के नशे में हर सुर्ख, हर सुनहरी चीज बेचकर नीली रोशनी खरीद रहा था, वहीं जमीन ने भी करवट ली। सूरजमुखी की ताहद्दे निगाह फैली उजाड़ फसल अब नीले रंग से ढकी नजर आई। फूलों की व्यापारी देख देख खुश हुई कि इनका रोजगार फिर से चल निकलेगा। आखिरकार जमीन ने चांद की अलामत एक नया फूल उगला था। स्याह रंग की डंडियों पर खड़ी सुरमई और कासनी कौमफल, जिसकी पत्तियों पर उगे नन्हे कांटे हर लम्स को जख्मी कर देते। लैलमुखी, वो फूल जो स्याह रात का फूल, वो फूल जो चांद की हुक्मरानी की अलामत था। फूलों के व्यापारी ने पल भर में उन्हें हर घर, हर चौराहे तक पहुंचा दिया। वादा ये था कि ये फूल की मुस्तकबिल की अलामत है, कल की जमानत है। लोगों ने उन फूलों को गुलदानों में सजाया, आंगन में दबाया, उनके फलने फूलने की इज्तिमाई दुआ की और जख्मी हाथों ने लैलमुखी पर गिरफ्त मजबूत कर दी। लैलमुखी की तासीर जादुई थी।
उस फूल ने देखने वालों की आंखों को, जो तारीख रात के सहर से अब तक महफूज थी, नीली रोशनी से भर दिया। तमाम मौजूदे खाकी इस तब्दीली पर खुश हुए। वो एक दूसरे को बताते रहे कि वो किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आईने तो कब के तोड़े जा चुके थे, सबको एक दूसरे की गवाही पर ही गुजारा करना था। इन सब से कहीं दूर दूर किसी तारीख मकान के उदास ढांचे में मौजूद एक लाग़र बूढ़ा और उसकी जवान बेटी अब भी सूरजमुखी की कब्र के गिर्द बैठे मातम कुना थे। वो खामोशी से चिराग की तब्दील होती रोशनी को तकते रहे। बाहर की रात उन पर नहीं बीती थी। जवान बेटी अपने बाप की सफेद होती आंखों को देखकर खौफजदा हो गई। बाबा, क्या तू मेरे लिए इस खाली कागज पर सूरज का अक्स उतार सकता है? तू शाहिद है, तू गवाह है। तेरी आंखों में अभी सूरज का अक्स ताजा है। तेरे हाथ अभी उस रोशनी के लम्स से आशना है। कल को तू भी भूल जाएगा और मेरे लिए भी यह हकीकत खूबसूरत वहम बनकर रह जाएगी। क्या तू मेरे लिए इस खाली कागज पर सूरज का अक्स उतार सकता है? लड़की ने चिराग की रोशनी में बनते बिगड़ते नकूश को देखते हुए सर दागा। बेटी की बात सुनकर बूढ़े ने आंखें खोली। मेरी प्यारी, अक्स क्यों कर एक दहकते एहसास का नेमुल बदल हो पाएगा। आतिशी वजूद कब खाकी पैरहन में समाया है। न रूह का अक्स है न रोशनी का। इस कोरे कागज पर तेरे वास्ते एक महरूमी छोड़ दूं। क्या तू माजी परस्त बनकर हाल में जिएगी? बूढ़े ने बेटी का हाथ टटोलते हुए थामा। एक स्याह नुक्ता जो उसकी बिनाई का भरम रखे हुए था, आंख से बहकर पानी की शक्ल में जमीन पर गिरा। बेटी ने मायूसी से स्याह आबी नुक्ते की जानिब देखा। मगर क्या तू नहीं चाहता तेरा खून हमेशा उस जोहरे जिंदगी का महरम रहे, मुतलाशी रहे? जब सब उसे भूल चुके हो, तेरा खून उस राज की पासदारी करे जो कभी अलामत हयात था। तू ही तो कहता था उस जोहरे जिंदगी का महरम कभी बांझ नहीं होता, कभी नहीं मरता। ये बात सुनकर बूढ़े की सफेद पड़ती आंखों में जैसे जिंदगी की रमक जानी। उस जोहरे जिंदगी को खाकों में महफूज रखना मुमकिन नहीं प्यारी। अगर दोबारा देखना है तो आंखें मूंद ले। उस आतिशी वजूद का एक अक्स तेरे दिल में भी महफूज रहेगा। बस किसी चिराग से रोशनी लेने को आंखें मत खोल। जब तक गैब हायल है उस शख्स को वजूद मान। बेटी ने बाप की बात को सुनने समझने की कोशिश की। मगर बाबा, बिनाई का ज़र्फ आंखें ही तो हैं। हम क्यों कर जिंदा रह सकेंगे? क्या जगहंसाई का बायस न बन जाएंगे? बेटी की बात सुनकर बूढ़े ने दिल पर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने राज को सुनने की कोशिश की हो। क्या करेगी वो बिनाई लेकर जो खुद के नक्शी न पहचान सके? क्या फायदा उस रोशनी का जो महज अंधेरे के एहसास में इजाफा करे? ये रोशनी वहम, शराब। अगर चाहती है कि खुद को पहचानने के काबिल रह सके तो उस चिराग की रोशनी में खुद को मत देखना। बूढ़े की बात सुनकर बेटी ने भी दिल पर हाथ रखा और चिराग से मुंह फेरते हुए आंखें मूंद ली। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। चिराग की रोशनी ने उन दोनों को बागी होने की सजा यूं सुनाई कि उनके साए खौफनाक, स्याह-तर और नाकाबिले फहम हो गए। अब इन दोनों को कुछ अरसा ऐसे ही जीना है, बाकी इंसानों के लिए अजनबी और नाकाबिले एतबार बनकर। सूरज की याद को मौदूम हुए एक सदी बीत गई। चांद के वजूद ने भी अपनी मुद्दत पूरी की और बेतनाई का गम सहते अदम का हिस्सा बनने पर मजबूर हुआ। आखिर आदमे नौ को अपने चिराग ही अजीज तक ठहरे। अब उन्हें किसी देवता, किसी सनम की तलाश न थी। आज साहिल किनारे लैल मुखी की पहली फसल पककर तैयार हुई तो तमाम लोग ये अनोखा मंजर देखने इकट्ठे हो गए। सबकी आंखें नीले जुगनू से चमक रही थी, जिनमें रोशनी तो थी, बिनाई नहीं। सबके हाथों में अपने अपने चिराग थे। ठंडी यखबस्ता हवा ने लैल मुखी की फसल को एक अदा से हरकत दी तो पत्तियों पर उगे लाखों नीलगो हार हवा में मुंतशिर हो गए।
नौ इंसानी का नया वजूद चुभन महसूस करने के काबिल न था। लाखों कांटे जिस्म में दाखिल होने पर भी वो हौले हौले झूमते आजादी मुतलक का गीत गुनगुनाते रहे। इन नीलगू जिस्मों के हजूम से बहुत दूर, बहुत पीछे दो ऐसे इंसानी जिस्म भी मौजूद थे जो अभी तक खाक और खून का भरम रखे थे। वो हाथों में सूरजमुखी का मुरझाया लाशा लिए दूर उफक पर नजरें जमाए मुंतजरे जमा रहे। किसी राजदान की सरगोशी थी कि वो जिंदगी का इस्तारा आज फिर गयाब से विसाल को आएगा। आजादी मुतलक की हम पढ़ते हजारों इंसानों पर एक बार फिर सूरज तलू हुआ। दोनों वजूदे खाकी तशक्कुर में झुक गए। उनके हाथों का सूरजमुखी एक बार फिर जिंदा हुआ और उस हालाए नूर की जानिब लपक कर सरापाए हम हुए। मगर वो हजारों नीलगू वजूद चराग थामे लैल मुखी के फूल ही चुनते रहे। उनके लिए रात भी वैसी थी और चराग भी वही, क्योंकि अब उनकी रोशन नीली आंखें सूरज को देखने की सकत हमेशा के लिए खो चुकी थी।